Good morning all, welcome to my YouTube channel MK Classes for You. A student, please like and subscribe my channel in YouTube. A student, today I will present you the diagrammatic presentation to show consumers equilibrium in one commodity case. Those students who already watched my previous video, they can easily understand this. यदि आपको ये समझना है तो आपको मेरा पहला वाला वीडियो जो कल मैंने दिया था उसको आपको देखना होगा, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा। क्योंकि कल yesterday I told you about how to make schedule in case of one commodity. Today on the basis of that I am going to draw the graphical presentation of that. So I am making two axes on the graph paper. This is OX axis and this is OY axis. A student, OX axis here represent consumption of commodity X. Consumption of commodity X. And OY axis shows price, means what? PX, and marginal utility of money. In case of one commodity, when you go through the graph, always gives consumption of commodity X in X axis, and in Y axis you should keep the price of the commodity and marginal utility of money, so that you can describe this graph very perfectly to show the consumer equilibrium. A student, let the price of commodity is ₹4. एकदम वही मैं बता रहा हूं जो कल मैंने जो शेड्यूल दिया था वीडियो में, उसी पे बेस्ड है ये ग्राफ. Price of commodity, that was ₹4 per unit, and MUM was 4 utils per rupees. It was there in my previous video. So let's take 2, 4, 6, 8. 4 is the price and each unit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. The price of each unit of commodity X is ₹4. So in every unit of consumption, the price is the same 4. So I draw the parallel line, the price one, which is parallel to the OX axis. Why? Because in each unit of consumption of X, the price remains same, that is ₹4. So the curve is the parallel to the OX axis. जितने भी यूनिट्स हैं उन सब का प्राइस कितना है? ₹4 है. इसीलिए जब आप प्राइस का जब आप कर्व बनाएंगे तो वो कर्व कैसा होगा? बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू OX एक्सिस होगा. ठीक है. दूसरा में अब हमको क्या ड्रॉ करना है? MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. तो मार्जिनल यूटिलिटी में जैसे कि मैंने कल बताया था, जब वो कंज्यूमर पहला यूनिट कंज्यूम करता है तो उसको कितना वर्थ ऑफ मनी मिलता है? ₹5. सेकेंड यूनिट में 4.5 और थर्ड यूनिट में कितना मिलता है? 4. तो फर्स्ट यूनिट में 5, सेकेंड यूनिट में 4.5 और थर्ड यूनिट में 4 मिलता है. तो इस तरह का ये ग्राफ बनेगा MUM का. So student, you can see here, this is the point I am taking A, the point where the curve MUM intersect the curve PX at the point A. This point shows PX is equal to MUM. Price of commodity is equal to marginal utility in terms of money.
दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, थर्ड पॉइंट। बच्चों बाकी ये जो पॉइंट्स थे यहां पे, ये जो पॉइंट है ये, इसको यदि हम लोग मैच कर दें यहां पर, तो ए बी सी, it becomes a triangle ABC. Triangle ABC is what? The surplus, the consumer surplus. This is known as consumer's surplus. इसको हम लोग कहेंगे कंज्यूमर सरप्लस। मतलब कंज्यूमर 4 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है और उसको 4 रुपीज से ज्यादा का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, एमयू मिल रहा है, एमयू इन टर्म्स ऑफ मनी मिल रहा है। इसलिए सेकंड और फर्स्ट यूनिट में जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे उसको 5 मिल रहा है, यहाँ पे उसको 4.5 मिल रहा है, यहाँ पे 4 मिल रहा है, इधर 2.5 वगैरह कल जो मैंने बताया था इस तरह से था। तो 4 से अधिक जो भी मिल रहा है उसको सेटिस्फैक्शन, दैट इज द कंज्यूमर सरप्लस। और वो हमेशा इक्विलिब्रियम जो पॉइंट होता है उससे ऊपर होगा। जैसे ही वो इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे आएगा तो यहाँ पे जो आपको ट्रापेजियम टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट पॉइंट, ये जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रापेजियम आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये जो लेवल है, ये लेवल कहलाता है कंज्यूमर्स डिससैटिस्फैक्शन, कंज्यूमर डिससैटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन लेवल। ओके, तो MUM is the downward sloping. Downward sloping, why this is downward sloping? Because we know that in the additional unit of consumption, marginal utility of commodity decreases, so that here you can see the downward sloping of MUM. Student, here the PX, this is PX. PX indicate the market price of commodity, that is 4. Each point on MUX curve shows the MUX in terms of money, indicate the price that the consumer is willing to pay for each successive unit to commodity. जैसे कि कंज्यूमर इज विलिंग टू पे फॉर 1 कमोडिटी 4 रुपीज, 2 कमोडिटी 4 रुपीज, 3 कमोडिटी, सारे कमोडिटीज का रुपीज कितना लग रहा है, उसका 4 रुपीज करके लग रहा है। ठीक है, लेकिन कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है व्हाट द कंज्यूमर गेट फ्रॉम द एवरी एक्सपेंडिंग। तो पहला एक्सपेंडिंग में उसको कितना मिल रहा है, 5 का बेनिफिट, दूसरे में 4.5 का, तीसरे में 4 का। यहाँ पे ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो रहा है क्योंकि उसको जितना एक्सपेक्टेशन है वह, ठीक है, व्हाट प्राइस द कंज्यूमर एक्चुअली पेज एंड व्हाट कंज्यूमर विलिंग टू पे इज इक्वल। वो क्या पे करना चाहता है और वो कितना पे कर रहा है और उसे कितना मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर वो इक्वल है, दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इससे ज्यादा वो क्वांटिटी कंज्यूम नहीं कर सकता है। ठीक है, भले ही उसके पास पैसा बहुत है। यहाँ पे अगर 4 रुपीज के हिसाब से देखें तो उसका कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, 12 रुपीज, 12 रुपीज खर्च कर रहा है। कितना कर रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर 12 का, लेकिन उसके पास है पैसा 20, फिर भी वो आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इससे ज्यादा वो कमोडिटी खरीदेगा तो वो किस लेवल पे चला जाएगा, डिससैटिस्फैक्शन लेवल पे। और जब भी डिससैटिस्फैक्शन लेवल मिलता है उसको, तो वो कमोडिटी को परचेज नहीं करेगा। ओके, तो आप यहां पे कह सकते हैं ये जो कंडीशन है कंज्यूमर सरप्लस मींस व्हाट, MUM ग्रेटर देन PX, MUM greater than PX. MUM is what, the price the consumer willing to pay, and PX is what consumer what amount actually pay. ये actual amount paid है and ये willingness to pay है। ठीक है, तो जब भी MUM PX से अधिक रहेगा, this situation is known as consumer surplus.
ये कंडीशन में क्या है, MUM इक्वल टू PX, यानी कि जब ये दोनों इक्वल रहेंगे, दैट सिचुएशन इज नोन एज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, इट गिव्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। एंड आफ्टर दिस पॉइंट, ये जो कंज्यूमर डिससैटिस्फैक्शन लेवल है, इसका मतलब हो गया MUM लेस देन PX। ओके स्टूडेंट, व्हाट आई डिस्कस्ड यू टू टेल अबाउट दिस पैराग्राफ, यू जस्ट as a observation at the bottom of this graph you have to mention your observation। okay, observation में आपको लिखना है कि OX in above graph OX axis is consumption of commodity, OY axis shows price and MUM of the commodity। okay, PX MUM shows downward sloping because of in additional unit MUX goes डाउनवर्ड। ओके, तो इस तरह से करके आपको अपने ग्राफ का पूरा एक्सप्लेनेशन देना है और लास्ट में कंक्लूजन में लिखना है कि कंज्यूमर थर्ड यूनिट से ज्यादा परचेज नहीं कर सकता है, क्योंकि एट द थर्ड यूनिट ही गेट द लेवल ऑफ PX इक्वल टू MUM, एंड वी नो दैट व्हेन PX इज इक्वल टू MUM, दिस shows the state of consumer's equilibrium। So this is all about consumer's equilibrium in case of one commodity। I have told you the definition, the condition, the factors, schedules to show the consumer equilibrium in case of one commodity, and here you can see the graph which shows the consumer equilibrium in case of one commodity। Now this is high order thinking skills question। high order thinking skill questions, this type of question we must learn, we must understand, because it gives us knowledge about the topic consumer equilibrium। Students, here you can see the condition is given here, how will you react when PX falls and your state of equilibrium disturbed। जैसे मान लीजिए मैं एक पुराना वाला प्राइस, ओल्ड प्राइस लेता हूं किसी भी कमोडिटी का। सपोज दैट प्राइस आई हैव टेकन 5 रुपीज पर यूनिट, 5 रुपीज पर यूनिट, एंड MUX is MUX is 20 utils and MUM is 4 utils per rupees। ठीक है, ये कंडीशन है। एक कोई भी कमोडिटी है, उसकी कीमत कितनी है, 5 रुपीज। ओके, और जब आप उस कमोडिटी को परचेज करते हो तो आपको उसमें यूटिलिटी कितनी मिलती है, 20, एंड द वर्थ ऑफ रुपीस कितना है, मार्जिनल यूटिलिटी वर्थ ऑफ रुपीस कितनी है, 4 यूटिल्स पर रुपीस। ठीक है, तो यदि आप इसमें, जब आप इसमें जाएंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला क्या होता है, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM in case of one commodity। तो पुट हेयर MUX कितना है, 20 अपॉन PX कितना है, 5, तो MUM कितना आ गया बेटा, 4। ओके, तो यहां पर MUM का क्या है कंडीशन, 4, ये भी है 4, यानी कि कंज्यूमर केवल जो है 1 यूनिट परचेज करेगा, उसको 1 यूनिट से 20 यूनिट्स मिल रहा है, तो कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। अब क्या हो रहा है कि जो प्राइस है वो कम हो जा रही है, जैसे कि पहले ₹5 था, अब उसी कमोडिटी की कीमत कितनी हो गई, ₹4, और उसका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितना है, 4 यूटिल्स UTLS पर रुपीस, UTLS पर रुपीस उसका है, MUM जो पहले था अभी भी है। तो यहां पे पूछ रहा है कि हाउ विल यू रिएक्ट इन दिस कंडीशन, यदि किसी कमोडिटी का प्राइस पहले की तुलना में कम हो जाए। ठीक है, यहां पे क्या था,
यहाँ पे ये था कि जो MUX है, MUX इन टर्म्स ऑफ रुपीज वो क्या है, इक्वल है, ठीक ना, PX इक्वल टू MU है, MUX। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों बताओ। Now again I put the formula MUX upon PX is equal to MUM. Okay, we don't know the MUX, we only know the price and MUM is 4, तो MUX कितना आ रहा है 16, ठीक है, जबकि उसको आना चाहिए था कितना 20। तो यहाँ पे जो आ रहा है बच्चों, अगर प्राइस कम हो जा रही है तो MUX पहले की तुलना में क्या मिल रहा है, हमारा कम मिल रहा है, ठीक है। तो MUX को इंक्रीज करने के लिए कमोडिटी का कंजप्शन को आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। Now I am giving you the another situation, consumers equilibrium in case of two commodity, यदि दो कमोडिटी अगर वो कंज्यूम कर रहा है तब वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के स्टेज पे कैसे पहुंचेगा। So we already know that in one commodity, suppose that commodity is X, the consumer equilibrium condition will be MUX upon PX is equal to MUM. Okay, I am taking this as a equation number 1. For Y commodity, the consumer equilibrium condition will be this PY MUM. This is situation number 2. So I am taking here the two equation in case of two commodity, 3 commodity, 4 commodity भी आप ऐसे करके लेते चले जाएंगे, ठीक है। तो सब में देखिए एक इंडिविजुअल कमोडिटी में जो आंसर आना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए, MUM के, ठीक है। तो जब भी आप इन दोनों इक्वेशन को रिलेट करें, ठीक ना, बाय रिलेटिंग the equation number 1 and 2, you will get MUX upon PX is equal to MUY upon PY is equal to MUM. So it will be the formula in case of two commodity, MUX upon PX equal to MUY upon PY is equal to MUM, ठीक है। इस तरह से हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि यहां पे आपने X कमोडिटी का प्राइस 5 ले लिया और MUX आपको 20 मिल रहा है। सपोज दैट Y कमोडिटी की प्राइस है 6 रुपीज और MUM मिल रहा है 24, तो MUM कितना हो गया 4, ठीक ना। तो इट इज द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम जहां पे MUX upon PX is equal to MUM and MUY upon PY is equal to MUM, ठीक है। बाकी सारे कंडीशन वही है जो वन कमोडिटी के केस में हम लोग अप्लाई करते हैं। जैसे जैसे कमोडिटी का कंजप्शन इंक्रीज होगा, MUX इन एडिशनल एवरी एडिशनल यूनिट गोज डिक्लाइन, हर एडिशनल यूनिट पे MUX जो होता है वो डिक्लाइन होते चला जाता है, ठीक ना। और एक कंज्यूमर हमेशा यही एक्सपेक्ट करता है कि मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी कमोडिटी के प्राइस के जितना हो चाहे उससे अधिक हो। कमोडिटी के प्राइस से यदि जैसे ही कम हो जाता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, कंज्यूमर गेट्स द डिससेटिस्फैक्शन लेवल ड्यूरिंग दैट टाइम, और वो कंज्यूमर उस एक्स्ट्रा कमोडिटी को परचेज नहीं करता। तो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स, दैट्स इट, दिस इज ऑल which are in your syllabus. So a student of class 11 till this point you have to cover all things.
एक बहुत अच्छा वाला एक पॉइंट है, उसको भी मैं चाहूँगा बताना आप लोगों को। जैसे कि कभी कभी सिचुएशंस आ जाते हैं क्वेश्चंस में, जैसे व्हाट हैपेंस व्हेन MUX upon PX greater than MUY upon P1। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इन केस ऑफ टू कम्युनिटी MUX upon PX is always equal to MUY upon P1 in case of two commodity in consumer equilibrium। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के केस में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इक्वेशन को कैसे मैंने इक्वलाइज करके फॉर्मूला बताया इन केस ऑफ टू कम्युनिटी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऐसे भी सिचुएशंस आते हैं जब ये दोनों इक्वल नहीं होता, हो सकता है कि ये अधिक है ये कम है, ये अधिक है ये कम है। तो इस सिचुएशन में कंज्यूमर को क्या करना होगा टू गेट द लेवल ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम के स्टेज पे जाने के लिए क्या करना होगा इन केस ऑफ दिस। सो स्टूडेंट, this is the situation which shows the consumer expending of goods X is greater than the marginal utility is greater than marginal utility he gets from Y। तो think of a situation, मान लो कि मैं यहाँ पर एक इमेजिनेशन करके डेटा लेता हूँ, इसको ग्रेटर बनाने के लिए। तो यहाँ पे कितना आएगा 5 5 जा 25, 6 4 जा 24। ठीक है, ये क्या था MUX upon PX MUY upon P1। ठीक है, तो इन दिस सिचुएशन व्हाट यू गेट हियर, यहाँ पे जस्ट क्या है कि जो MUX है, ठीक है, वो अधिक होने की वजह से यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 5 ग्रेटर देन 4। तो इसको जब तक हम लोग इक्वल नहीं करेंगे तब तक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के स्टेज पे नहीं पहुंच पाएगा। तो इसको इक्वलाइज करने के लिए आप क्या ऐसा काम करेंगे कि ये दोनों इक्वल हो जाए। एक्स और वाई दो कमोडिटी है, कंज्यूमर क्या करेगा ऐसा कि उसको इक्विलिब्रियम का जो स्टेज होता है उसको वो मिल सके। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी कमोडिटी का कंजप्शन अगर हम लोग ज़्यादा करेंगे तो उसका जो MUX है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है, वो क्या होता है डिक्रीज होता है। तो अगर यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज कर दें हम लोग 25 को अगर 20 कर दें तो ये 4 4 इक्वल हो जाएगा ना। तो 25 को 20 करने के लिए एक्स कमोडिटी का कंजप्शन कंज्यूमर बढ़ाएगा ना घटाएगा? ऑब्वियसली ही विल इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ कमोडिटी एक्स। कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ कमोडिटी एक्स ठीक है till the point when MUX upon PX become equal to MUY upon PY। ये जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक वो एक्स कमोडिटी का कंजप्शन करता चला जाएगा, और जब ये एक्स कमोडिटी का कंजप्शन बढ़ाएगा तो MUX ऑब्वियसली क्या होगा डिक्रीज होगा। तो ये जब डिक्रीज होकर के 20 पे आ जाएगा, मान लो कि पहला कंडीशन मैंने बताया, जब वो कंजप्शन बढ़ाएगा तो इसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होकर के कितनी हो जाएगी 20। अब ये क्या बन गया इक्वल, ठीक है 4 इक्वल टू 4। नाउ कंज्यूमर गेट्स द इक्विलिब्रियम स्टेज। तो कभी कभी ये सिचुएशंस आ जाते हैं क्वेश्चंस में, ये थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चंस हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एंड इट इज ऑल फॉर्मूला बेस्ड, कुछ नहीं करना है। अगर ये ग्रेटर देन चाहे इसमें भी होगा तो इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी है, जैसे कि मान लो ये 5 है तो इसको आप 5 कर सकते हैं। 5 करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
इसकी जो MUX है उसको क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा, क्योंकि MUY जो है वो MUX से कम है, तो MUY को बढ़ाने के लिए यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी को इंक्रीज करना है। तो बच्चों मार्जिनल यूटिलिटी तभी इंक्रीज होगा जब आप कमोडिटी का कंजप्शन कम करेंगे, ठीक है। तो आप दूसरा कंडीशन भी यहां पर लिख सकते हैं, बाय डिक्रीजिंग द कंजप्शन ऑफ कमोडिटी Y till the point when MUX upon PX becomes equal to MUY upon PY। दोनों कंडीशन पे आप इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, 25 को डिक्रीज करके 20 किया, तो MUX को डिक्रीज करने के लिए X कमोडिटी का कंजप्शन को मैंने क्या किया, बढ़ा दिया। अगर मान लो ये कंडीशन नहीं दे रहे, दूसरे कंडीशन में जो Y कमोडिटी है, यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, 4। अगर 4 को आपको 5 बनाना है तो 6 5 जा 30, यानी कि 24 को क्या करना होगा, 30, ठीक है। तो 24 को 30 करने के लिए आपको MU को इंक्रीज करना होगा। तो MU को इंक्रीज कब होता है, जैसा कि हम लोगों ने लॉ में पढ़ा था कि MU तभी इंक्रीज होगा जब हम लोग किसी कमोडिटी का कंजप्शन को कम करें। ये टेक्निकल क्वेश्चन थे, इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।